हम सभी वैश्विक रूप से महामारी से जूझ रहे हैं, जिससे हमारा शरीर और हृदय चिंता और निरंतर डर से ग्रसित हो रहा है। आज की स्थिति में विश्व में आर्थिक और भावनात्मक अनिश्चितता, प्रोफेशनल अनिश्चितता और स्वास्थ्य को लेकर भी असुरक्षित और भय है। इस परिस्थिति में एकम से सह संस्थापक प्रीता जी और कृष्णा जी एक प्रभावी शांतिपूर्ण ध्यान का उपहार दे रहे हैं, जिसमें लाखों की तादाद में लोग ऑनलाइन से जुड़कर चैतन्य की असीम स्थिति में प्रवेश कर धैर्य एवं साहस की स्थिति को अनुभव करेंगे। यह ध्यान आपके शरीर और हृदय को हीलिंग प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। ऑनलाइन जुड़ते हुए सभी इस ध्यान की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। We are together over here to celebrate this most ancient human pursuit. Enlightenment is to be free of your suffering, that you can take back as the biggest gift for yourself and for humanity. Ekam Enlightenment Festival is for you to find enlightened states. If you can have that state in your consciousness, every other thing will automatically come to you. You are going to immerse in 5 profound states of enlightenment. Sakshi Bhava, Ananda, a state of Sakshatkara, Mahakaruna, and Tattvamasi. Unless you become transformed or awakened or enlightened, life is not really worth it. You're missing out something very great, which is the human potential. The other thing is, as a human species, we must survive. The way we are going, we will destroy ourselves. So we have to save humanity, first thing. And secondly, if all of us become transformed, then the world becomes transformed. As you are all together experiencing these profound states of enlightenment, you are moving beyond the boundaries of division into experiencing oneness. Each and every one of you are contributing towards a more awakened world, are contributing towards a better world. Come to the Enlightenment Festival. The enlightened states will make sure that your creativity explodes, because you're going to come in touch with something that is beyond your imagination. You're going to witness something that you've never witnessed before in life. Your entire understanding will change. This festival was profound and fabulous. The transformation was phenomenal. I feel really nice and blessed to be here today and be able to celebrate with so many other people in this beautiful festival. It was a blissful experience which is very precious to me. Before coming to Ekam, my life was in hell. Now I am in heaven. I am truly who I am today. It's because of Ekam Enlightenment Festival. So happy to be myself and so confident to go to the world and share my experience. Super divine festival. Like there is Diwali, there is Navratri, all our social festivals. This is divine festival. You have to come and experience this. Come with your family. In these 7 days, life has changed, has transformed. 7 நாள் முக்தி உற்சவம் ஏகத்தில் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. 7 daysல effortless transformation. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. I don't feel like leaving Ekam, just feeling to stay here. Amazing.
Mind blown. Do visit Ekam Enlightenment Festival. Don't miss it. I intend each and every person on this globe should attend this festival and change their whole life, and the whole world will change with this. Thank you. नमस्ते, मैं रोमा हूँ। एकम क्षेत्र में एक फैकल्टी हूँ। एकम के सह संस्थापक श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी के साथ वैश्विक लिमिटलेस फील्ड मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस संकट को पार करने हेतु महानतम आशीर्वाद से अपने शरीर को हील करने, रक्षा देने एवं हृदय में असीम आध्यात्मिक शक्ति और धैर्य प्राप्त करने के लिए आए हैं। लिमिटलेस फील्ड मेडिटेशन के दौरान हम ईश्वर को बहुत शक्तिशाली रूप में अनुभव करेंगे। परिवर्तनकारी लीडर्स और मिस्टिक्स के रूप में श्री प्रीता जी और श्री कृष्ण जी अपनी प्रज्ञा बांटेंगे, जो हमें और हमारे प्रियजनों का एक सुंदर भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगी। आप में से जो लोग ये नहीं जानते हैं कि एक लिमिटलेस फील्ड क्या है, मैंने बहुत से लोगों को आधी दुनिया की यात्रा करते हुए श्री प्रीता जी और श्री कृष्ण जी को मिलने आते देखा है। और जब श्री कृष्ण जी उनसे पूछते हैं कि मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं, वे कहते हैं, मुझे आपकी उपस्थिति में मौन बैठने की अनुमति दें। और उस मौन में वे अपनी इच्छा से बहुत बढ़कर प्राप्त करते हैं। असीमित चैतन्य क्षेत्र ध्यान साधना वो है जहां वे बिना बोले आपके साथ जुड़ते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु वह आपको एक महानतम भविष्य की ओर ले जाने के लिए आशीर्वाद देते हैं। लिमिटलेस फील्ड की चमत्कारी घटना को समझाने के लिए भौतिक विज्ञान से एक उदाहरण लेते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करने वाला लोहे का एक टुकड़ा भी चुंबकीय हो जाता है। इसलिए जब आप लिमिटलेस फील्ड में प्रवेश करते हैं, तब आपका शरीर, मन और चैतन्य प्रभावित होते हैं। एक लिमिटलेस फील्ड ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का एक क्षेत्र है जो श्री प्रीता जी और श्री कृष्ण जी द्वारा उत्पन्न किया जाता है जब वे एकम अथवा एक अद्वैत एकत्व की मुक्ति स्थिति में जाते हैं। मानव शरीर की इस सर्वोच्च स्थिति में वे चैतन्य का एक क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो स्थान से परे जाकर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। लिमिटलेस फील्ड से बहने वाले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूरी मायने नहीं रखती है। सिर्फ खुलेपन के साथ होने पर अपने घरों में बैठकर भी आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था और विश्वास के बावजूद इस ग्रह पर मौजूद हर इंसान को लिमिटलेस फील्ड का लाभ मिल सकता है। लिमिटलेस क्षेत्र के दौरान हम सामूहिक रूप से एकम मंत्र का जाप करेंगे जो हमसा सोहम एकम है, जिसका अर्थ है मैं ईश्वर में हूँ, ईश्वर मुझ में है, हम एक हैं।
लिमिटलेस फील्ड में प्रवेश करना चैतन्य के एक पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करना होता है। जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो आपका मस्तिष्क और आपकी तंत्रिका संरचनाएं और आपकी तंत्रिका रसायन एक परिवर्तन से गुजरती है। आपका हृदय, जो आपका भावनात्मक केंद्र है, प्रभावित होता है। आपके मस्तिष्क में पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस के बीच का क्षेत्र भारतीय संतों में ब्रह्मगर्भा या असीमित चैतन्य के गर्भ के रूप में जाना जाता था। ब्रह्मगर्भा आपके मस्तिष्क के केंद्र में स्थित है। लिमिटलेस फील्ड के दौरान जब आपको तेजोमय ब्रह्मगर्भ पर अपना ध्यान रखने के लिए कहा जाता है तो आप अपने मस्तिष्क के मध्य भाग को प्रकाशित होने की कल्पना कर सकते हैं। ब्रह्मगर्भा का अलौकिक क्षेत्र असीमित क्षेत्र में सक्रिय हो जाता है। अब आपको एक पल लग सकता है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम आगे बढ़ने से पहले कुछ क्षणों के लिए ब्रह्मगर्भा का ध्यान करेंगे। भ्रूमध्य स्थान पर अपना ध्यान रखिए। वहां एक ज्योति को देखिए। अब धीरे धीरे अपने मस्तिष्क के बीच में उस ज्योति को प्रवाहित होते हुए देखिए। अपने मस्तिष्क के बीच में उस तेजोमय ज्योति को प्रकाशित देखिए। धीरे से 3 बार श्वास लीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। इन कठिन समय में श्री प्रीता जी और श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि हम संकट के इस दौर का उपयोग आध्यात्मिक विकास के लिए करें। इसलिए हर दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी ओर से एक वीडियो मैसेज आएगा, जिसे अगर आप देखें तो आपको काफी फायदा होगा और आप उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके जीवन का हिस्सा है। यह एक बेहतर दुनिया के लिए आपका योगदान होगा। आप फैकल्टी द्वारा लीड किए गए ऑनलाइन क्लासेस में भी भाग ले सकते हैं, जहां श्री प्रीता जी और श्री कृष्ण जी की ज्ञान बोधन आपको समझाई जाएगी और आप सुंदर ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ेंगे।
हम आपसे अब अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने मोबाइल को साइलेंस पर रखें। कृपया तुरंत कीजिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आने वाले 60 मिनट तक एक दूसरे के साथ बातचीत न करें। केवल मौन में रहने से आप लिमिटलेस फील्ड में ट्यून कर सकते हैं और गहरा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। कृपया अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए कुर्सी या फर्श पर बैठिए। कृपया इस अवधि के दौरान इधर उधर न जाएं। इसलिए यदि आप तैयार हैं तो हम श्री कृष्ण जी को बात करने के लिए आमंत्रित करेंगे। Namaste. How are you? नमस्ते। How are your loved ones? आप It must सभी be hard कैसे for you हैं? sitting at home, इतने away from सालों your से regular कार्यों में activities. व्यस्त रहकर अब But घर this पर is also an बैठना extraordinary बहुत wonderful कठिन time लगता होगा, for every one of परंतु you यह अपने take a जीवन look at पर your life, एक नजर दोबारा make डालते the हुए necessary changes. जरूरी परिवर्तनों को लाने हेतु It is एक time बहुत to ही make small अद्भुत changes समय है। to your lifestyle यह and जीवन changing your शैली food में habits छोटे or छोटे becoming बदलाव करने more का समय है, self-reliant. जैसे कि It is also अच्छे time to स्वास्थ्य के ask प्रति bigger questions. भोजन की आदतों में Like what परिवर्तन else लाना would you like to do और with your अधिक career आत्मनिर्भर बनना। that ये will बड़े not प्रश्न only पूछने ensure का your समय है, survival and profit, जैसे कि आप but अपने also करियर के bring साथ और क्या bigger करना purpose. चाहेंगे, जिसमें How can न you help केवल the world उत्तरजीविता और मुनाफा around मिले, you बल्कि to महान become a उद्देश्य better भी place हो, with यानी your कि career? आप अपने करियर के How can you साथ truly matter विश्व to को एक others? बेहतर स्थान बनाने में This is a कैसे time मदद करेंगे? that has brought आप families दूसरों के together लिए in वास्तव years. में कैसे मददगार In होंगे? most families, यह एक ऐसा समय parents है and children जो and वर्षों बाद grandparents परिवारों are को staying एक together साथ after लाया है। years. अधिकांश Instead of परिवारों being में on the run हर from समय each other एक all the दूसरे से time, दूर रहने के बजाय we are अब sharing माता chores पिता, together बच्चे और दादा and दादी playing games वर्षों together. बाद एक साथ रह रहे हैं। आप At a एक deeper साथ level, कामकाज कर रहे हैं, this is also a सदियों time when we पुराने are becoming खेल खेल conscious रहे of the हैं। oneness of our human गहरे experience स्तर पर with यह people एक ऐसा all समय over the है world. जब हम विश्व भर के People लोगों के who are साथ richer than you, अपने मानवीय अनुभवों poorer के than you, एकत्व के बारे में people you सचेत dislike, हो रहे हैं। people जो you लोग love, आपसे ज्यादा अमीर हैं all are या going through गरीब the हैं, same जिन emotions of लोगों को आप anxiety नापसंद करते and हैं या प्रेम frustration. करते हैं, They सभी simply love चिंता God और हताशा की and are समान walking for भावनाओं joy. से गुजर रहे हैं, You अपने can see प्रियजनों that को none of us याद are कर really रहे हैं, different from खुशी one की another. लालसा कर रहे हैं। We are one आप in देख our सकते human हैं कि experience. हम में से कोई भी Let us वास्तव come में down एक today. दूसरे से अलग नहीं है। Today's limitless हमारे field मानवीय meditation अनुभव में is to हम एक impact you, हैं। the individual, and to impact the आज का collective consciousness लिमिटलेस of फील्ड humanity. मेडिटेशन आपके लिए है। Limitless field व्यक्तिगत is the एवं transcendental सामूहिक field of मानवीय चैतन्य consciousness. को प्रभावित करने के In लिए your है। normal wakeful state, लिमिटलेस फील्ड you see चैतन्य the का world एक around you as अलौकिक numerous क्षेत्र है। forms. अपनी सामान्य The जागृत tree, स्थिति में the earth, आप अपनी चारों the ओर की bird, दुनिया को all are असंख्य forms रूपों that में appear देखते in हैं। the field of पेड़ consciousness. एक रूप है, पृथ्वी You एक too रूप है, are a form. पक्षी एक रूप है, आपका कुत्ता एक रूप है, In the आपका transcendental जीवन reality, साथी और बच्चे all एक that रूप हैं। exists is आप one जिस unit. घर में रहते हैं वो एक रूप है, आप भी एक This रूप field हैं। extends to all the लेकिन galaxies अलौकिक वास्तविकता and में the जो universe कुछ भी है itself. वो सिर्फ We एकत्व are a क्षेत्र field है। that is not यह limited to a क्षेत्र form, हमारे ज्ञात to a ब्रह्मांड body, और अनगिनत to a अज्ञात mind that is ब्रह्मांडों में thinking, 2 खरब to our आकाश past गंगाओं तक histories and our फैला हुआ achievements है। and failures. हम एक We ऐसा each are a क्षेत्र part हैं of this जो field, हमारे स्वरूप तक free सीमित and नहीं है boundless. और ना हमारे We शरीर, flow into मन each other या सोच तक, न beyond हमारे इतिहास और हमारी उपलब्धियों A व Rigvedic असफलताओं तक सीमित हैं। that if you हम do not प्रत्येक feel जन connected to this मुक्त one और unitary असीम field of चैतन्य consciousness, क्षेत्र हैं। हम एक no दूसरे में hymns प्रवाहित होते हैं, and हम rituals एक हैं। can bring you ऋग्वैदिक closer. श्लोक कहता है, It यदि is only आप when you चैतन्य know के the इस true एकत्व essence of the क्षेत्र universe, से नहीं जुड़े हैं your तो कोई भी consciousness स्रोत is और established अनुष्ठान in the आपको wholeness आशीर्वाद and नहीं दे oneness of सकता है। life.
जब आप ब्रह्मांड के वास्तविक सार को जान जाते हैं, तभी आपका चैतन्य जीवन की पूर्णता और एकत्व में स्थापित होता है। आज के ध्यान में असीमित चैतन्य क्षेत्र से अपार आशीर्वाद भय को दूर करके आप में धैर्य की स्थिति को जागृत करेगा। आपके शरीर में अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। आपकी चिंता, डर और घबराहट के परिणाम स्वरूप सभी संचित विषाक्त पदार्थ, जिसे आमा कहा जाता है, वो विलीन हो जाएंगे। आपको लिमिटलेस फील्ड से दिव्य हीलिंग भी प्राप्त होगी। तेजोमय स्वर्णिम प्रकाश इस दिव्य क्षेत्र से प्रवाहित होकर आपके शरीर को हील करते हुए रोग से लड़ने के लिए दृढ़ और सशक्त बनाएगा। अब हमें प्रीता जी और आगे ले जाएंगे। अब आपके हाथों और पैरों को स्ट्रेच कीजिएगा। ऐसे ही मौन का पालन कीजिए। गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए मुस्कुराइए। एक और बार गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते समय मुस्कुराइए। अब इसे और 2 बार ऐसे ही कीजिए। अब जब आप रेडी हो जाएंगे, बैठ जाइएगा। आइए, अब हम श्री प्रीता जी को ज्ञान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। उसके बाद लिमिटलेस फील्ड मेडिटेशन होगा। नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? कृष्ण जी और मैं आपके परिवार, आपके सहयोगियों और आपके सभी प्रियजनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मुझे पता है कि आप में से हजारों लोग इस लिमिटलेस फील्ड मेडिटेशन में आपकी सोल सर्कल के 9 सदस्यों के साथ शामिल हो चुके हैं। अपने सोल सर्कल के साथ असीम चैतन्य क्षेत्र में भाग लेने से आपके सामूहिक भाग्य में बदलाव आएगा। सोल सर्कल के सदस्यों को यह निमंत्रण देकर आपने सच्ची देखभाल और प्रेम को दर्शाया है। सभी की महानतम कुशलता के लिए आपके सोल सर्कल का सामूहिक विकास आवश्यक है। आने वाले 2 वर्ष आश्चर्यजनक बदलाव की ऋतुओं को लाएंगे। जैसे आप जीवन को देखते हैं, आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सब कुछ बदलने वाले हैं। इन बदलावों के दौरान चैतन्य की एक अद्भुत स्थिति जो आप में जागृत होनी चाहिए, वो धैर्य की स्थिति है। जब श्री रमण महर्षि को उनके हाथ में कैंसर हुआ और उनका शरीर अंतिम चरण में चला गया, एक दिन उन्होंने अपनी हाथ को देखकर शांत और प्रेम की भावना से कहा, बेचारा हाथ। यह धैर्य है। धैर्य निर्भयता के समान नहीं है। बहादुर होना और निर्भय होना मन से आता है। आप अपने मन को सीमित अस्तित्व के रूप में देखते हैं। जब आप किसी पर क्रोधित होते हैं, तब खड़े होकर असहमत होना निर्भयता है। निर्भय होना दिखने और सुनाने के लिए एक प्रयास है। यह सीमित मन से
उत्पन्न होता है। जब सीमित अस्तित्व के ढांचे से मुक्त होते हैं तब धैर्य उत्पन्न होता है। जब आप महानतम परस्पर संबंध और जीवन की गहन प्रकृति के प्रति जागृत होते हैं तब धैर्य का जन्म होता है। मन के इस ढांचे से मुक्त होने का पहला चरण तब होता है जब आप परस्पर संबंध और प्रेम की गहरी भावना के प्रति जागृत होते हैं। ऐसा प्रेम नहीं जो एक व्यक्ति के प्रति आकर्षण है तो दूसरे के प्रति असंवेदनशीलता और कठोरता। वह प्रेम नहीं है, वह आसक्ति या जुनून है। प्रेम तब होता है जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की भलाई के लिए परस्पर संबंध की गहरी भावना और गहन इच्छा का अनुभव करते हैं, या आपके परिवार, संगठन या स्वयं पृथ्वी के कल्याण की गहन इच्छा हो सकती है। इस प्रेम में, इस परस्पर संबंध में आत्म जुनून नहीं होता। केवल जब आपके पास वह प्रेम होता है, जब आपका हृदय जागृत होने लगता है, आप शांति से जीवन के बदलावों का सामना कर सकते हैं। आप जानेंगे कि एक नौकरी का जाना, एक सपने का टूटना या थोड़े धन का खोना जीवन का अंत नहीं है। यह शांति का अंत भी नहीं है। यदि आपकी संपत्ति कम हो गई है तो आप आराम से देख पाएंगे यह अभी के लिए चला गया है, किसी दिन वापस आ जाएगा। धैर्य की स्थिति में आप जीवन के खेल को देखते हुए संभाव बनाए रखते हैं। ऐसा धैर्य एक आदर्श नहीं है, यह चैतन्य की एक अद्भुत स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जहां आपको एहसास होता है कि आप अपने परिवार से परस्पर जुड़े हुए हैं। अपने परिवार का प्रेम, समर्थन और देखभाल आपको जीवित रखता है और आपकी उपस्थिति उनके जीवन को समृद्ध बनाती है। आप अपनी संस्था और समुदाय से जुड़ाव महसूस करते हैं। आप जीवन में अपनी उन्नति के लिए उनके प्रयासों के प्रति सचेत होते हैं और उनकी उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। आप अवलोकन करते हैं कि धरती कैसे आपको संभालती है, खिलाती है, जीवित रखती है, और आप जानेंगे कि आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। आपको उसका समर्थन करने और बचाने के लिए सभी प्रयास करने होंगे। धरती माँ का सहयोग करने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में आवश्यक छोटे बदलाव लाने होंगे। केवल हमारे आपसी अंतर संबंध की जागरूकता में ही हमारे हृदय धैर्य के प्रति खुलते हैं। जब अपने आप से कुछ बढ़कर के प्रति प्रेम होता है, तब जीवन के बदलाव के साथ प्रवाहित होने का धैर्य उत्पन्न होता है। जो भी धैर्य की स्थिति में स्थापित होता है, उसके लिए ब्रह्मांड एक मित्र बन जाता है। ईश्वर एक सखा बनकर जीवन के इस सफर में आपका साथ देते हैं। आज के लिमिटलेस फील्ड में चैतन्य के लिए धैर्य और शरीर के लिए हीलिंग का उपहार प्रवाहित होगा। शरीर अपने तनाव रसायनों को शुद्ध करेगा। प्राचीन आयुर्वेदिक ऋषियों ने शरीर में इन स्थितियों को आमा कहा है। आप दोनों को शुद्ध करते हुए प्राण शक्ति की ओर बढ़ेंगे। आप संभावनाओं के एक दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। उपपरमाणु दुनिया की तरह इलेक्ट्रॉन्स या तो एक कण या एक लहर के रूप में देखे जा सकते हैं। हम खुद को एक स्थान या एक रूप में स्थित पदार्थ के रूप में देख सकते हैं, अथवा चैतन्य के निरंतर तरंगों के विस्तारित क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं। लिमिटलेस फील्ड में हम खुद को चैतन्य के इस अथाह क्षेत्र के भाग के रूप में देख पाएंगे। हम जुड़े हुए हैं, हम एक हैं। अब हम लिमिटलेस फील्ड में प्रवेश करेंगे। कृपया
अपने स्थानों पर बैठ जाइए। कृपया मौन में भी रहिए। हम कुछ ही क्षणों में लिमिटलेस फील्ड ध्यान में प्रवेश करने वाले हैं, कृष्णा जी और प्रीता जी के संग। कृपया स्थिर बैठिए। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए अपनी जांघों पर रखिए। अपनी तर्जनी उंगलियों को अपने अंगूठे की टिप्स को छूने दें। अपने हृदय में धीरे धीरे और गहरी श्वास लीजिए। अब धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। आंतरिक रूप से महसूस कीजिए जैसे कि आप अपने सोल सर्कल के सभी सदस्यों के हाथ पकड़ रहे हैं जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें खुश और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दीजिए। अब अपने हथेलियों को अपने हृदय के ऊपर रखकर परमात्मा को आपके हृदय में धैर्य और तनाव के कारण संचित सभी विषाद पदार्थों से अपने शरीर को ठीक करने के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं।
अपनी हथेलियों को आराम दीजिए। आइए अब हम एकम मंत्र हमसा सोहम एकम में तल्लीन होकर जाप करेंगे। जैसे ही आप इस मंत्र का जप करते हैं, आपका चैतन्य विस्तारित होगा और आप परमात्मा में प्रवाहित होते हैं और परमात्मा आप में प्रवाहित होते हैं। अपना ध्यान अपने मस्तिष्क के मध्य में तेजोमय ब्रह्म गर्भास्थान में लाइए और ऐसे ही रहिए। श्री प्रीता जी और श्री कृष्ण जी अब असीमित चैतन्य क्षेत्र की गहराइयों में हमें ले जाएंगे।
आइए अब हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर से रोग मुक्त होने और अपने मन में चिंता मुक्त होने के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी मनुष्यों को पृथ्वी के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव के साथ रहने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब आप धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आज दुनिया भर से आप सभी के साथ जुड़ना अद्भुत था। जब हम सभी के लिए यात्रा करना सुरक्षित हो जाएगा तो आप एकम जरूर आइएगा। नमस्ते।